اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا۔ اس کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل بھی لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا کارنامہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی بے تحاشا تعریف کی۔ ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا۔ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ہرقل کے کانوں میں اب تک کوئی نئی بات پڑی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے کوئی شکست کا پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحے کی برتری اور نفری کی افراط کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، اور وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھی، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تو قہبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگھی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھیں، اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہرقل کی بگھی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوا لی اور اتر آیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، چھوڑ دو انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھی۔ ہرقل نے بلند آواز سے کہا، میں کچھ نہیں سمجھ رہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ ایک عورت بولی، شہنشاہ روم، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، آگے بولو، جو کہنا ہے وہ کہو۔ ایک عورت نے کہا، کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ اس کے سوا اور کوئی بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ایک اور عورت نے کہا، ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے، گھوڑے برچیاں اور تلواریں ہمیں دے دے۔ ایک اور نے کہا، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ہرقل کے محافظ ڈر رہے تھے
कि शहंशाह रोम का अताब उन पर गिरेगा कि वो चंद एक औरतों को उसके रास्ते से नहीं हटा सके। तमाशाई इस इंतजार में थे कि हरकल उन तमाम औरतों को घोड़ों तले कुचल देने का हुक्म देगा, लेकिन हरकल खामोशी से, तहम्मुल और बुर्दबारी से औरतों के ताने सुन रहा था, शायद इसलिए कि वो मकामी नहीं रूमी औरतें थीं। हरकल ने कहा, हमारी फौज बुज़दिल साबित हुई है, मैं बुज़दिल नहीं हो गया। शिकस्त खाकर जो भाग आए हैं वो फिर लड़ेंगे, मैंने शिकस्त को कबूल नहीं किया है। एक औरत ने पूछा, फिर हमारा शहंशाह क्या सोच रहा है? हरकल ने कहा, तुम जल्द ही सुन लोगी। मैं जिंदा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा। फतह और शिकस्त होती ही रहती है, वो कौम हमेशा दूसरों की गुलाम रहती है जो शिकस्त को तस्लीम कर लेती है। मैं तुम्हें किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मुसलमानों ने जहाँ तक आना था वो आ चुके हैं, अब मेरी बारी है। वो मेरे फंदे में आ गए हैं, अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने जो लिया है उससे कई गुना ज्यादा देंगे। मेरे लिए दुआ करती रहो, तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगी और तुम अपने खावंदों के, अपने भाइयों के, अपने बापों के और बेटों के हौसले बढ़ाती रहो। एक औरत ने कहा, हम उन पर अपने घरों के दरवाजे बंद कर देंगे। हरकल ने कहा, तुम उन्हें गले लगाओगी, अब वो फातेह बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। औरतों ने अपने शहंशाह को रास्ता दे दिया। हरकल ने उन औरतों की महज दिलजुई नहीं की थी। मौरिख लिखते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम करने वाला जंगजू था ही नहीं, और वो शहंशाह बाद में और सिपाही पहले था, और वो अपने दौर का मंचा हुआ जर्नैल था। ये कहना गलत नहीं कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की टक्कर का जर्नैल था और जंगी चालों में उसकी महारत का अंदाज अपना ही था। अगर वो सिर्फ शहंशाह होता तो अपनी सवारी के रास्ते में उन औरतों की रुकावट को बर्दाश्त न करता, उन्हें सजा देता। लेकिन उसने उन औरतों से हौसला लिया और उनका हौसला बढ़ाया। उसने ये भी महसूस किया था कि किसी तरफ से शिकस्त की और उसकी फौज की पसपाई की इत्तला आती थी तो उसके हुकाम उसके सामने आने से गुरेज करते थे। ऐसा ही एक मौका था कि उसका एक सालार जो मुशीर की हैसियत से उसके साथ रहता था उसके सामने गया। उस सालार के चेहरे पर मायूसी का जो तासुर था वो हरकल ने भांप लिया। हरकल ने पूछा, क्या है? सालार ने कहा, मरजुल दिबाज से कासिद आया है। हरकल ने जोशीले लहजे में कहा, तो कहते क्यों नहीं कि वो एक और पसपाई की खबर लाया है? अपने दिलों से मेरा खौफ निकालते क्यों नहीं? शिकस्त और पसपाई के नाम से घबराते क्यों हो? बोलो। सालार ने कहा, हाँ शहंशाह, कासिद पसपाई की खबर लाया है और वहाँ से भागे हुए सिपाही यहाँ आना शुरू हो गए हैं। हरकल ने कहा, आने दो उन्हें। उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था और उसके लहजे में शाहाना जलाल भी नहीं था। फिर वो बोला, उनका हौसला बढ़ाओ, कोई उन्हें शिकस्त और पसपाई का ताना न दे, यही सिपाही शिकस्त को फतह में बदलेंगे। सालार ने कहा, सिपाहियों का हौसला तो बहाल हो जाएगा, लेकिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। लोग मुसलमानों को जिन्नात और भूत समझने लगे हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जो लोगों को बुज़दिल बना रही हैं। हरकल ने कहा, जानते हो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? हमारे अपने सालार, कमांदार और सिपाही, ये जाहिर करने के लिए कि वो तो बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन उनका मुकाबला जन्नात से हो गया। सालार ने कहा, शहंशाह रोम, मुसलमानों की कामयाबी की एक और वजह भी है। हमारे जिस शहर के लोग उनसे सुलह का मुआहिदा कर लेते और जिज़्या अदा करते हैं, उनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उनकी औरतों और उनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनकी जानो माल की हिफाजत करते हैं, उनके मजहब का भी एहतराम करते हैं। ये खबरें सारे इलाके में फैल जाती हैं। इसका असर ये होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फौज का साथ छोड़ देते हैं और उसे सुलह पर मजबूर कर देते हैं। इसका कोई इलाज होना चाहिए। हरकल ने कहा, इसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, और इसका बंदोबस्त हो रहा है। अबुल कुद्स में हरकल को जो चोट पड़ी थी उसने उसे झंझोड़ डाला था। उसे उस मार्के की तफसीली इत्तला मिली थी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक गलती कर बैठे थे। रूमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो फंदे में आया था, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और जर्रार ने बर वक्त पहुंचकर न सिर्फ रूमियों का फंदा तोड़ डाला था, बल्कि उन्हें नाकाबिल तलाफी जानी नुकसान पहुंचाकर माल गनीमत से मालामाल होकर लौटे थे। हरकल को मुसलमानों की बरकरफ्तारी ने परेशान कर दिया था। उसने देखा था कि मुसलमानों की फौज एक से दूसरी जगह हैरान कुन तेजी से पहुंचती थी और मैदान जंग में सालारों की जंगी चालों पर उनके दस्ते बहुत ही तेजी से जगह बदलते और चालों को कामयाब करते थे। उसके बाद तो जैसे हरकल ने रातों को भी सोना छोड़ दिया। उसने उसी रोज अपनी सल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासिद दौड़ा दिए थे। उसने हुक्म ये भेजा था कि ज्यादा से ज्यादा फौजी दस्ते अंताकिया भेज
भेज दिए जाएं। वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था, हर जगह फौज की जरूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमजोर नहीं होता था। जिन इलाकों से दस्ते आए उनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हरकल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेजी से आएं। जब ये आने लगे तो उनमें से बास को अंताकिया में रखा गया और दूसरों को दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे से जरा ही दूर एक मकाम बेसान पर भेज दिया गया। हरकल ने अपने मुशीरों और सालारों को बुलाया। इनमें सकलार, शंस और थियोडोरस खास तौर पर काबिल जिक्र थे। इन तीनों को महाजों से बुलाया गया था। हरकल ने उन सबको बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए उसने क्या बंदोबस्त किया है और सालारों ने क्या करना है। उसने कहा, तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं। शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। इनसे तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है, जाओ और मुसलमानों की इताअत कबूल कर लो। कैसर रूम की अजमत को मुसलमानों के कदमों में डाल दो और सलीब को बहीर रूम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियां और अपने माल और अमवाल ज्यादा अजीज हैं। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक गिरोह तुम्हें शिकस्त पर शिकस्त देता चला जा रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकल की निगाहें हर एक पर घूम गईं। उसके सालार थियोडोरस ने सुकूत तोड़ा। शहनशाह रूम, हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतल्लिक कह सकता हूँ कि मैं आपके सामने जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊंगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहाँ नहीं आएगी। इस एक सालार के बोलने से न सिर्फ सन्नाटा टूटा बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सब ने हरकल को यकीन दिलाया कि उन्हें सल्तनत रोम से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं। हरकल ने कहा, मैंने मुसलमानों को यहीं पर खत्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम नहीं हो सकता। अब तक हमारी फौज मुख्तलिफ जगह पर बट कर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे फौजी भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहाँ के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्जाम से बचाने के लिए ऐसी बातें की जिनसे वहाँ के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फौज को यकजा करके लड़ाऊंगा। तुमने देखा है कि मैंने कहां कहां से दस्ते मंगवाए हैं और किस कदर लश्कर जमा हो गया है। मेरी नजर दमिश्क पर है, लेकिन हम दमिश्क पर हमला नहीं करेंगे, ना उसका मुहासरा करेंगे। हम दमिश्क से दूर छोटी छोटी लड़ाइयां ज्यादा नफरी के दस्तों से लड़कर मुसलमानों के रसद के वो रास्ते बंद करेंगे जो अरब से दमिश्क को जाते हैं। हम दमिश्क में या उसके गिरदो निवाह में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुसलमान तंग आकर लड़ना भी चाहें तो हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे। हम उनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो लड़ने के काबिल रह ही नहीं जाएंगे। उन्हें न कहीं से रसद पहुंच सकेगी न कुमक। शहर के लोग ही कहत से तंग आकर उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो दमिश्क से निकल गए तो हम कहीं भी उनके कदम जमने न देंगे। ये भी ख्याल रखो कि हमारी फौजों का इज्तिमा ऐसा खुफिया तरीके से हो रहा है कि मुसलमानों को उसकी खबर तक नहीं होगी। हरकल का तो ख्याल था कि उसके लश्कर का इज्तिमा खुफिया रखा गया है, लेकिन मुसलमानों के सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत मजबूत और तेज जासूसी निजाम तरतीब दिया था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को सवार दस्ते का सालार बना रखा था और उसके साथ ही उन्हें अपना मुशीर भी समझते थे। मौरिखों के मुताबिक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु सालारी की महारत रखते थे और जंगी उमूर को भी पूरी तरह समझते थे, लेकिन उनमें वो तेज रफ्तारी नहीं थी जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु में थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फैसलों में बड़े खौफनाक किस्म के खतरे भी मोल लिया करते थे। उसके बरक्स अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु एहतियात के कायल थे। अपनी सादत को समझते हुए उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को हर लम्हा अपने साथ रखा। वो कोई भी मंसूबा बनाते या फैसला करते तो उसमें खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरों को खास तौर पर शामिल किया करते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जासूसी और देखभाल के निजाम पर ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। अब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं रही थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सालार आला की थी और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे सालारों की तरह एक आम सालार थे। लेकिन अपनी माजूली के बावजूद वो अपने फराइज से बेइंसाफी गवारा नहीं करते थे। उन्होंने जासूसी के निजाम पर पहले की तरह तवज्जो दिए रखी। उसी का नतीजा था कि मुसलमान जासूस रूमियों की सल्तनत के अंदर दूर तक चले गए थे। एक रोज एक जासूस आया। वो बहुत दूर से आया था। उसने बताया कि रूमियों का एक लश्कर बहीरा रोम के रास्ते कश्तियों पर आया है। उस जासूस ने अपने उन जासूसों से राब्ता किया जो और आगे तक गए हुए थे। वो उन सब की इत्तला लेकर बड़ी ही तेज रफ्तार से दमिश्क पहुंचा और ये इत्तला दी कि रूमियों ने कमो
कमोबेश 1 लाख नफरी का लश्कर दरियाए उर्दन के मगरिब में जमा कर लिया है। तारीख के मुताबिक बेसान के मकाम पर दिसंबर 634 ईस्वी के आखिर और ज़िक़ाद 13 हिजरी के पहले हफ्ते में रूमियों की फौज का ये इज्तिमा हुआ था। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक उस लश्कर की तादाद 1 लाख बताई थी। असल में रूमी फौज की तादाद 80,000 थी। इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते थे। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। उनसे कहा, मेरे अजीज साथियों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। शुक्र अदा करो अल्लाह की ज़ात बारी का जिसने हमें हर मैदान में फतह अता की। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम इतनी दूर निकल आए हैं जहाँ से हमारी वापसी नामुमकिन हो गई है। अल्लाह ने हमें बहुत सख्त इम्तिहान में डाला है। अगर हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो ये एक रिवायत बन जाएगी जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशले राह बनेगी। मत भूलना कि हम न माल गनीमत के लिए लड़ रहे हैं, न हमारा मकसद इक़्तिदार है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बनी नौ इंसान को जुल्मत और गुलामी से निजात दिलाने का फर्ज सौंपा है। अब दुश्मन ने हमारे सामने दीवारें खड़ी कर दी हैं। रूमी कमोबेश 1 लाख का लश्कर लेकर आए हैं। इससे उनके अज़ाइम का पता चलता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, और यही हो सकता है कि रूमी दमिश्क पर हमला करेंगे। अगर दमिश्क हमारे हाथ से निकल गया तो फिर कहीं कदम जमाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन ने बहीरा रोम से अंताकिया, बैरूत और 1-2 और बंदरगाहों पर यूरोप से फौज ला उतारी है। हमें सबसे पहले दमिश्क के दिफा को मजबूत करना है, लेकिन हम एक ही जगह पर जमा नहीं हो जाएंगे। एक सालार ने पूछा, हमारी तादाद इस वक्त कितनी होगी? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारी तादाद पहले से कुछ ज्यादा हो सकती है। पिछली लड़ाइयों में जो मुजाहिदीन जख्मी हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर वापस आ चुके हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारी नफरी 30,000 तक हो जाएगी। हमें एक सहूलत और हासिल हो गई है, वो ये है कि मुजाहिदीन ने काफी आराम कर लिया है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलकर मंसूबा तैयार किया कि रूमियों के उस लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने महाज पर लड़ने वाले सालारों पर ये पाबंदी आयद कर दी थी कि किसी बड़ी जंग का मंसूबा बनाकर उनसे मंजूर करवाया जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गैर मामूली फहम फरासत के मालिक थे। बाज़ जगहों की प्लानिंग वो खुद मदीना बैठकर करते और महाज को भेजते थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पाबंदी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कासिद मदीना को रवाना कर दिया। जो पैगाम दिया गया उसमें नई सूरत हाल लिखी गई थी और मुजव्विज़ा मंसूबा भी तहरीर था। वक्त बहुत थोड़ा था। दुश्मन बेतहाशा नफरी साथ लाया था। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि किस लम्हे वो क्या कार्रवाई शुरू कर दे, लेकिन मुसलमानों ने पैगाम रसानी का निजाम इतना तेज और महफूज बना रखा था कि थोड़े से वक्त में दूर के फासले पर पैगाम पहुंच जाता। अमीरुल मोमिनीन ने सूरत हाल और मंसूबे का जायजा लिया, उसमें कुछ रद्द बदल किया और मंसूबे की मंजूरी दे दी। यजीद बिन अबी सुफियान दमिश्क में थे। वो सालार भी थे और दमिश्क के हाकिम भी। उन्हें पैगाम भेजा गया कि दुश्मन क्या सूरत हाल पैदा कर रहा है और वो बदस्तूर दमिश्क में रहें। उन्हें यह हिदायत भी दी गई कि दमिश्क के शुमाल मगरिब पर जासूसों की देखभाल करने वाले आदमियों के जरिए नजर रखें, क्योंकि तवक्को यही है कि रूमी उधर से हमला करेंगे। सालार शुराहबील बिन हसना अपने दस्तों के साथ उस इलाके में थे जिसमें बेसान और फहल वाक़े थे। खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खास तौर पर लिखा था कि सालार शुराहबील रज़ियल्लाहु अन्हु को इस जंग के लिए सालार मुकर्रर किया जाए जिसकी रूमी तैयारी करके आए हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस फौज के हिरावल दस्ते की सालारी सौंपी गई थी। जनवरी 635 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में इन दस्तों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी, कूच किया। इन्हें बेसान से कुछ दूर फहल के मकाम तक पहुंचना था। ये दस्ते जब फहल पहुंचे तो देखा कि वहाँ रूमी मौजूद नहीं थे। वहाँ रूम की पूरी फौज को नहीं होना चाहिए था। खबर मिली कि चंद एक दस्ते वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये दस्ते जा चुके थे। वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि रूमियों के दस्ते बेसान चले गए हैं, जहाँ उनके पूरे लश्कर का इज्तिमा है।